ओके सो लेट्स स्टार्ट एनिमेटिंग। इससे पहले बस मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर दूँ। आई थिंक मैं इसको सही से डिफाइन नहीं कर सका था पहले। सो लेट जस्ट क्रिएट अ बेसिक शेप around it. Okay, again, the shape of it. It looks, yeah, the simplicity of it. ठीक है, so this is the basic shape of it. However, how the eye works, आँख किस तरह से यहाँ पर आ रही है. So if I look at it, so you can see that these lines and these lines, are intersecting here. However, this line is also moving here. This line is also moving here. Okay, so they are basically creating this region, which is exposed major in क्या कहना चाहिए, which is really exposed outside, because यहाँ पर अगर आप देखें तो you don't see anything. यहाँ पर अगर आप देखें तो it's just a cloth. You don't see any detail or anything here. यहाँ पर भी you just don't see anything. So this is the only area which is the most visible in terms of positive area, because everywhere you see, that's a negative area, that's a negative area. It is also filled with positive area, but there's no detail to it, there's nothing to see, there's nothing interesting going on here. Yeah, it does look appealing because the cloth effect is really nice, but you can see that these are the details which which the eye is catching. Okay, and again, sometimes placing the object in the rule of third area is also nice. Okay, so if you create the rule of third grid, you will see that this camera is lying almost exactly there. So you need to understand that as well. And okay, so let's just move on to the animation part. I have just created this phone model. ये वही है जो हमने अभी मॉडल किया था, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ, नई फाइल ओपन करूँगा काम करने के लिए. ओके, कंट्रोल डी प्रेस करता है. इससे होगा ये क्या, इन द प्रोजेक्ट सेक्शन FPS का मैं 25 कर सकता हूँ. ठीक है, तो जी यहाँ पर 25 FPS हो जाएगा. प्लीज़ डू दैट बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट और एनिमेशन. ओके, सो यहाँ पर मैं सेटिंग्स में आकर इसको 128 की जगह 1920/1080, and I'm locking the ratio so that if I just increase or decrease it, it will look the same. Current frame की जगह preview range. Okay, so yes, that is it. Now what I'm going to do is I'm just going to create a camera. वो यहाँ से आ जाते हैं, और ये उस वक्त सेलेक्ट होता है जब आप इसके ये जो रेक्टेंगुलर बार्स आ रहे हैं छोटे से, इस पर क्लिक करेंगे. सो नाउ द कैमरा इज सेलेक्टेड. सो व्हेनेवर यू मूव, यू आर लुकिंग थ्रू द कैमरा. एंड हाउ डू यू सी दैट, आप एक न्यू पैनल खोल सकते हैं इन विच यू कैन सी कि कैमरा कहाँ पर लगा हुआ है आपका. सो यू कैन सी दिस इज़ द कैमरा, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट कैमरा. तो डिफ़ॉल्ट कैमरा में आप अपना कैमरा देख सकते हैं कि कहाँ पर है. सो लेट्स सी इफ आई पिक अप अ cube or scale it up, so you can see that ये वाला जो कैमरा है, let me just put it here. ऐसे ये grab करने से you can just put it here. So in the perspective you can see ये वाला जो कैमरा है, this camera is looking at this one. So if you move it, let me just move it, you can see. ठीक है, so it basically works like the real world, but I work on it. It depend करता है कि कौन सा शॉट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से चीज़ें आगे मूव होती हैं. Okay, so but I usually use it like this as well as this, as well as rotating it like this. So let me just give you a quick example. इसको मैं बंद करता हूँ. So example, मुझे अगर यहाँ पर की राइट करनी है कैमरा की, so I will just आऊँगा 0 पर, की राइट करूँगा, यहाँ से आगे बढ़ जाऊँगा और इसको मैं मूव कर लूँगा, सेंटर में ले आऊँगा, फिर एक की राइट करूँगा. सो लेट्स सी, इस की को मैं पकड़ के आगे ले जाता हूँ जस्ट सो आई कैन सी अ बेटर वर्जन ऑफ इट. सो यू कैन सी. ठीक है, अभी कैमरा बहुत नीचे कट हो जाता है, तो आई कैन ऑल्सो यू डू दिस कि मैं यहाँ पर ला कर इसको ऐसे जूम आउट कर दूँ, फिर एक की राइट कर दूँ. लेट्स सी क्या होता है. सी, सो you can do things like that. So this is the basic method to key
frame the camera. However, let's just delete it, and I'm just going to import the mobile phone. ठीक है, so अब इस फ्रेम को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं. इस फ्रेम में आपके पास जो कैमरा है वो कुछ ऐसे, जो फ़ोन है वो कुछ ऐसे आ रहा है. सो अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ऑल द स्पेस around the phone is the negative area, and it is well designed. So because if I see this is ये अच्छा रूल है. I will just explain things up. You can see if I even close this down, और यहाँ पर बस मैं एक शेप रखता हूँ. So this is already starting to look appealing because you can see जो negative area है, this is well well placed. ये area you can just cut it out. It looks really simple and it looks appealing क्योंकि ये जो lines आ रही हैं ये diagonal हैं. Diagonal lines looks appealing in terms of if you just create this frame. It will also look appealing if if the background is right, but it doesn't have energy to it. It doesn't feel like that it is moving. But when you start to create diagonal lines, it represents that something is moving. Okay, the frame looks more alive. It doesn't look static. So let's just delete it. Okay, so what we need to gather here. Okay, sometimes you don't really need to. Most of the time, you don't really have to or need to create the exact replica of the things, but you need to understand and extract all the information which is in that frame to offer. For example, इस frame में हमने ये सीखा कि इस diagonal lines show more energy and they will look more alive. And you can also see कि यहाँ पर थोड़ा सा detailed थोड़ी सी light ज़रूर आ रही है, just to make things more थोड़ी सी यहाँ पर आ रही है, थोड़ी सी यहाँ पर आ रही है, just so the background doesn't look 100% flat. Okay, so let's start. और start हो रहा है किस तरह flip होते हुए और आगे जाके slow हो जाता है. So you see, so we are not going to create the exact replica of it, but we will try to do something same. So let's do that. So first thing first, let me just save it, or Shift 4D. Let me just create shots folder, and here I will just name it shot 2 and V001. ठीक है, तो इस तरह मैं जितना इंक्रीमेंट करता जाऊंगा उतनी नई फाइल्स बनती जाएंगी. Okay, so let's just create a camera. Where is it? Okay, camera. Okay, so कैमरा जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं इस तरह से चीज़ें, इस तरह ये भागना भी शुरू हो सकता है फ्रेम. ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट. ओके, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो कैमरा सही कंट्रोल में आ जाएगा. ओके, सो द होल, अच्छा ये देखें ये ग्रे एरिया आ रहा है और आई थिंक मैंने ये कर लिया सही है. ये ग्रे एरिया आ रहा है, आई डोंट रियली लाइक इट. सो शिफ्ट वी प्रेस करें और सेव फ्रेंड्स में आके ओपेसिटी बढ़ा दें तो इट लुक्स ब्लैक. ठीक है, लेंस मुझे लगता है यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा थोड़ा सा वाइट लेंस. लेट्स सी क्या आ रहा है. एंड कोशिश है कोऑर्डिनेट्स आपके ऑलरेडी 0 ताकि जब आप 0 पर जाएं तो वो सही लगे. ओके, सो मैं इसको रोटेट करता हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ. ठीक है, और कैमरा मोड ऑन है. फिजिकल पहले मैं जाऊँगा कंपोजिशन में, यहाँ से मैं ग्रिड ऑन कर लूँगा. आई यूजली डू दैट. Okay, so I think this looks fine. Yeah, I'm okay with it. So camera, और मुझे पता this is my last frame, so I will just just add a keyframe. और एक और चीज़ देखनी कि अब कैमरा मूव हो भी रहा है या नहीं हो रहा. So I think phone ही मूव हो जाए, that will look fine. That will that will be just fine. So let's animate the phone only. सो मैं कैमरे से कीज़ हटा देता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ तमाम चीज़ों को एंड शिफ्ट के साथ एनिमेशन डिलीट ड्रैग, तमाम एनिमेशन चली जाएंगी. सो अब नाउ आई जस्ट हैव टू लॉक द कैमरा ताकि मैं बार बार इस तरह से रोटेट नहीं कर दूँ. सो व्हाट आई हैव टू डू इज़ जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड इन द रिगिंग एरिया आई जस्ट हैव टू ऐड दिस टैग. अब मैं उसको मूव नहीं कर सकता. ठीक है, सो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट इट. सो पहला और आखिरी फ्रेम पर मैंने ये की फ्रेम लगा दिया. स्टार्ट फ्रेम देखते हैं. I just have to rotate it.
ठीक है, और लेट्स जस्ट सी क्या होता है। लेट्स सी। Yeah, so I really like it. However, the timing is not right. So let's just see क्या हो सकता है। ठीक है, सो होगा ये कि ये आगे जाके यहाँ पर आके स्लो हो जाए, बाकी ये वाला जो एरिया ये जल्दी आ जाए। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। तो मैं जैसे ही इसमें आऊँगा और मैं चेक करता हूँ इसकी पोजीशन वगैरह को, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, एनिमेशन, शो एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट इज मतलब स्प्लाइंस। तो पोजीशन देख लेते हैं कौन सी है ये। तो यू कैन सी दिस इज़ द ग्रीन, दिस वन हम ऊपर लेकर जा रहे हैं, दिस इज़ द ग्रीन वन। So green one is Y. तो मैं Y में आऊँगा और I can just do this. So now if I play it, it looks like this. But what I need is that कि ये जल्दी से इधर आ जाए। तो ये values का मैं क्या करूँगा, अच्छा ये break करना होगा। Easily break हो जाता है कहाँ से, ये नहीं हुआ, यहाँ से ये भी हुआ। अरे अनलॉक कैसे होगा? या शिफ्ट दबा के आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। So let's see. सो you're only seeing the Y पोजीशन। तो देखिए इसमें चेंज आया है कि ऊपर वो जल्दी आ जाता है फिर स्लो होता है। तो इसी तरह अगर मैं रोटेशन में भी थोड़ा सा चेंज लाऊं, सो मैंने रोटेशन में क्या चेंज किया है, इट्स आल्सो द Y एक्सिस। सो PBH। अच्छा मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम कर दिया ये यहाँ पर रोटेट करते हुए, बिकॉज इट इज़ शोइंग द ऑर्डर इन PBH। इट शुड शो इन द XYZ एरिया। लेट मी जस्ट अनडू एवरीथिंग, क्योंकि वो फिर अगर एक्सेस सही नहीं हो तो वो तमाम चीज़ों में वैल्यूज़ ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो ये हम अभी से कंट्रोल रखेंगे तो वो सही रहेगा। ठीक है, सो लेट मी जस्ट डिलीट ऑल द डेटा। एनिमेशन, सो मुझे लगता है एक्स वाई तो सही है, सिर्फ रोटेशन का डेटा हमें डिलीट कर देते हैं। डिलीट ट्रैक सही। सो नाउ इफ आई मूव इट, एक बार चेक कर लीजिए कि इफ ऑल ऑफ दीज आर मूविंग देन दैट इज नॉट द राइट थिंग। सो लेट्स सी। हाँ अब देख रहे हैं, दिस इज द राइट थिंग। एक वैल्यू चेंज होनी चाहिए, राइट। इस तरह वाई को भी मैं डिलीट कर देता हूँ और जी को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी देयर इज जस्ट वन एनिमेशन। ठीक है जनाब। सो लेट्स सी, इसमें यहाँ पर आता हूँ, इसकी रोटेशन ये है, ओके, और इसको मैं इन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं एनिमेशन डिलीट ट्रैक अगेन, सिर्फ इसकी रोटेशन चाहिए, तो आई विल जस्ट रोटेट इट हियर। सही। सो नाउ वी जस्ट हैव टू वैल्यूज जिसमें हमें चीज़ें देखनी है। सो लेट मी जस्ट वर्क थिंग्स अराउंड हियर फर्स्ट। इसको मैं और कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह ये भी आगे ले आता हूँ, ये भी आगे ले आता हूँ। सी कितना स्मूथली मूव हुआ है, और फिर ये इसी तरह मैं वाई को भी बेहतर कर लेता हूँ। सो व्हाट आई वांट कि जल्दी से स्टार्ट हो और फिर स्लो हो जाए आगे। ठीक है, बट आई ऑल्सो वांट कि यहाँ पर आके थोड़ा सा और रोटेशन बढ़ जाए। सो वेयर इज़ अ रोटेशन, तो मैं इसको जितना और एक्सपैंड करूँगा, मैं उसको जितना और एक्सपैंड करूँगा, लेट्स सी क्या वैल्यू आती है। शिफ्ट दबा के भी और कर सकते हैं। सो यू सी जितना एक्सपैंड हो सकता है हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह थोड़ा सा मुझे लगता है और आगे भी हो सकता है, ये और ऊपर बढ़ सकता है। सही, लेट्स डू दैट। इसको भी मैं बिल्कुल 90 डिग्री पर ले आता हूँ। ठीक सर, अब ये बहुत ज़्यादा जंप होता हुआ लग रहा है, तो मैं स्लाइटली इसको काउंट कर लेता हूँ। See, so now we have created a first shot, which looks okay to me, because
that is what was required of it. So now what I can do is that just मैं इसको polish भी कर सकता हूँ moving onwards, so you can just play with these things. Also, let's just delete these other keyframes if we have any. Scale को भी delete करते हैं, we don't need it. Y, Z, rotation H हमें चाहिए थी, वो है हमारे पास. सही. One more thing which we can do to just optimize it a bit. Optimize से मैंने कहूँगा just to make some little variation out of it. सही, इसको थोड़ा सा हम ऐसे भी लेकर आ सकते हैं, थोड़ी सी रोटेशन और ऐड आ जाएगी और ऐड और हो जाएगी तो और वेरिएशन आ जाएगी. तो इसमें मैं वही दोनों की फ्रेम्स लगाता हूँ, यहाँ पर आकर इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. लेट्स सी क्या बनता है. लेट्स जस्ट प्ले इट आउट. Yeah, it looks nice, but obviously we have to change the rhythm of it, change the spacing of it. अगर इसको और डिटेल में पढ़ना है, so you can also check my YouTube tutorials. See, we don't really need that. So मैं ये चाहता हूँ कि इसका की फ्रेम भले ये पहले से इसकी रोटेशन ख़त्म हो जाए, ठीक है. एंड अभी हो ये रहा है कि ये वाला पार्ट ज़्यादा फेवर में और ये पार्ट बहुत देर से आता है. सो लेट्स डू द इनवर्स ऑफ दिस. तो होगा ये कि ये जल्दी से अपनी वैल्यू लूज करेगा और यहाँ पर आ जाएगा. सी, नाउ वी हैव अ बिट ऑफ अ क्या कहते हैं वेरिएशन टू इट. सो दैट इज़ व्हाट वाज रिक्वायर्ड ऑफ इट. बट अगेन मैंने थोड़ी सी गलती ये की कि यहाँ पर 24 फ्रेम्स का शॉट है और हमने बहुत ज़्यादा बना दिया. सो लेट्स जस्ट ग्रैब ऑल ऑफ दीज की फ्रेम्स, वाई और ये, ठीक है. सो एंड आई डोंट नो ये थोड़ा सा ऑफ हो जाएगा क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रेच की. लेट्स जस्ट से 24 फ्रेम्स, अगेन 24 फ्रेम्स, ठीक है. और को भी यहाँ से जो 75 का फ्रेम नहीं है, ये 24 फ्रेम्स का शॉट है. देखने थोड़े से टेंजेंट्स ख़राब हो गए, सो आई नीड टू just select them and redo them. So first of all, you need to select the right time. Let's play. ठीक है. So again ये थोड़ा सा pop-up ज़्यादा हो रहा है. You see, this is too much. So मुझे लगता है ये किसकी वजह से, ये रोटेशन की वजह से भी है और y की वजह से भी है. तो y का मैं थोड़ा सा और स्मूथ आउट करता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा और ऐसे स्मूथ. रोटेशन ये वाली है तो इसको भी मैं थोड़ा सा स्मूथ आउट करता हूँ. Do try to make good curves. Okay. So now we have created this shot और मैं इसको बंद कर. Again, it does look a bit snappy right now, so let me just remove a few more rotations. ये कितना rotate हो रहा है? -20 से start हो रहा है, +20. So let's just create this. तो वैल्यू कम कर देंगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा कम मूव होगा. और आई थिंक y को थोड़ा सा अगर मैं और नीचे ले जाऊँ तो लेट्स सी. ठीक है, तो यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो थोड़ा सा वो और स्मूथ आउट हो जाएगा. ठीक है. So we also need this snappy because the animation is snappy. First of all, don't really think like यार ये ऐसा हो रहा है और फिर next इसका preview कैसे आएगा. We can also preview it by sound. You can just shift C sound type करें. sound MoGraph और इसके अंदर अपना sound डालना है. सिलेक्शन ऑफ साउंड भी जा सकता है. यू कैन जस्ट आफ्टर इफेक्ट्स में आए अपने इसका साउंड ऑन रखें, कंट्रोल M. ठीक है. नॉर्मली यही होता है कि आप अपना जो साउंड होता है वो एक्सपोर्ट कर लेते हैं. मोशन म्यूजिक शॉर्ट्स और ये हो जाएगा शॉर्ट.
So now you can just import this sound so that you can see कितना part आपके पास आ रहा है. So इधर आ जाएं और इसको साउंड ट्रैक पर आए, लोड साउंड, just short to wave चल जाएगा. Let's play. ठीक है, अभी प्ले नहीं हुआ. ये कभी कभार मसले करते हैं, तो यू कैन जस्ट, पर एक और ऑप्शन आता है प्ले साउंड का, इसको है दबा दें. लेट्स सी, ये देखें साउंड यहाँ से वो बंद है. ओके सो अब क्यों नहीं आ रहा प्ले साउंड? क्यों भाई? आई डोंट नो, ये कभी कभार मसले करते हैं. लोड साउंड अगेन कर लेते हैं. इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ. इसको बस एक है, कभी कभार रीनेमिंग के भी इश्यूज आते हैं इसमें. प्ले साउंड, अच्छा यहीं से बंद हो जाते हैं. The sound, I don't know why it's not working. Anyway, I will just fix it और फिर मैं बता दूंगा किस तरह से होगा. But normally what I do when I complete the shot, मैं यहाँ पर Alt B प्रेस करता हूँ. Alt B, या फिर आप रेंडर में जाकर ये भी क्लिक कर सकते हैं. कहाँ गया? Edit. Deep notes, my edit setting, render queue takes, render the picture interactive. And Alt B किधर होता है ये? खैर, Alt B इज़ अ शॉर्टकट. व्यू पोर्ट रेंडर करते हैं, ठीक है, और इसको कर लें आप 1280, जो कि हमने अपने इसका का फ्रेम रेट चाहिए. और लेट जस्ट हिट रेंडर. सो यहाँ पर ये कैलकुलेट करता है एंड इट विल बी जस्ट रेडी. ठीक है, सो इसी तरह आई कैन जस्ट शो इन फाइल एक्सप्लोरर. ये मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये टेम्पररी फोल्डर में जाता है. ये फिर ख़त्म हो जाता है जैसे ही आप प्रोजेक्ट बंद करेंगे. तो मैं इसको एक जगह कलेक्ट कर रहा होता हूँ. किस तरह? प्रीविजुअल, एडिट, एंड, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ. बट ये है कि मैं शॉर्ट 2 और VO1 रख देता हूँ इस पर, ताकि अगर मैं अपडेट करता रहूँ तो मुझे पता हो कौन सा शॉर्ट कहाँ जाना है. सो नाउ लेट मी जस्ट प्रिपेयर. ओ, यहीं पर साउंड नहीं है. दैट इज़ नॉट राइट. ओके, क्योंकि इसकी लेयर में ही साउंड नहीं है, तो इस वजह से वहाँ भी नहीं गया, क्योंकि वेव फॉर्म ही खाली है. आई डोंट नो व्हाई. लेट मी जस्ट चेक इट. प्रीमियर में आई थिंक ऑफ रह गई होगी कंपोजिशन. ओह, मैंने प्रीमियर में पूरा साउंड गिराया हुआ था. ओके, आई विल जस्ट री एक्सपोर्ट इट. Control M. Replace, export. सही, तो होपफुली यहाँ पर अब आवाज़ आना शुरू हो जानी चाहिए. तो ये हो गया मैनेज. बट ये क्या, अब देखें यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि ये जो कॉन्ट्रास्ट एंड शेप है ये बड़ा मासूम सा लग रहा है. यहाँ पर ये फ्रेम फिर सही लग रहा है, बट दिस शुड बी मोर स्केल्ड अप. दिस शुड लुक लाइक दिस बिग, ताकि पता चले कि कॉन्ट्रास्ट है, कि बड़े शेप से भी एक छोटा शेप बना है. अदरवाइज द एनिमेशन विल लुक बोरिंग. सो वंस यू स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स, अब देखें जैसे VO1 हमारे पास बना है, तो नाउ इफ़ आई वर्क ऑन दिस एंड चेंज दैट एरिया, फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से इफ आई एम हियर, आई विल जस्ट make it a bit more closed. यहाँ पर करीब, ठीक है, ऊपर और करीब इधर, ठीक है. नाउ आई विल जस्ट सी कि भाई क्या होता है. ठीक है, ये वाला फ्रेम मैं डिलीट कर देता हूँ. लेट्स सी, ठीक है, ये आया. एंड नाउ अच्छा, क्योंकि मैंने इस पर दोनों जगह की फ्रेम नहीं किए थे, तो लेट मी जस्ट अनडू इट. ठीक है,
सो यहाँ पर इसको डिलीट किया। लेट्स सी, इन दोनों पर भी की फ्रेम लगा दी ताकि हमारा एंड फ्रेम क्लोज में, और इसको मैं क्लोज के ऊपर लाए तो ऐसा, और इधर लाए। ठीक है, यू कैन ऑल्सो डू वन मोर थिंग कि अगर आप एक न्यू पैनल खोलें तो यहाँ से यू कैन जस्ट स्टार्ट मूविंग इट अप, जिधर भी एस प्रेस करें और इसको जस्ट जैसे मूव करना चाहे कर लें। ठीक है, ओके सो अगेन, ठीक है, आई यूजली लाइक सिमेट्री और डायगोनल लाइंस हो, बट जब स्ट्रेट की बात हो रही हो या स्ट्रेट हो तो वो फिर स्ट्रेट ही लगे। सो लाइक जस्ट, ठीक है, इन दोनों को की फ्रेम लगा देते हैं। सही, सो आई थिंक वी आर गुड टू गो, बट ये कि ये ऑब्वियसली इसमें थोड़ी सी की फ्रेम एडजस्टमेंट्स करनी है। और ये ठीक है, मैं इन सबको लीनियर कर देता हूँ, मैं इसका भी की फ्रेम हटा देता हूँ सो दैट इट लुक्स ओके। यहाँ पे मसला आ रहा है, जस्ट इसको भी मैं मर्ज करवा देता हूँ। नाउ वी जस्ट हैव, मैं इसको लीनियर कर देता हूँ, तमाम फ्रेम्स को लीनियर, इन सिलेक्शन में आए और तो अब बस बेसिक एनिमेशन होगी, दैट इज इट। सही, सो नाउ यू कैन सी दिस इज द बेसिक एनिमेशन। सो नाउ देयर इज वन मोर थिंग विच यू कैन डू कि यहाँ पर आकर यू कैन जस्ट राइट वन मोर की, एक की आपने राइट की। अब क्योंकि इस फ्रेम में वो सारी वैल्यूज स्टोर हैं कि जो ये पोजीशन लेकर आ रही है, ये रोटेशन और ये एक्स वाई जी वैल्यू ला रही है, तो इफ़ यू जस्ट मूव इट अपवर्ड, इससे होगा ये कि ये या इस जो जो फ्रेम यहाँ पर बन रहा था वो अब यहाँ पर बन रहा है, दैट मीन्स इन दोनों में जो वैल्यूज बची वो बहुत कम है, तो वो स्लो हो जाएगा। सो लेट्स सी, सी यहाँ पर आके चीज़ें और स्लो हो गई, बट लेट्स नॉट डू दिस, लेट्स ट्राई सम अदर वे। यहाँ पर आते हैं और इन तमाम वैल्यूज़ को एनिमेशन और शो एक्टर, देखिए ये बाहर आ रहा है, इट्स जस्ट पुट इट हियर, पोजीशन वाई। ओके सो क्या आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, पोजीशन वाई, इन सबको पहले तो कर्व कर देते हैं। ठीक है, और लेट्स सी, ठीक है, पोजीशन वाई हो गया, पोजीशन एक्स, लेट्स सी, इसको भी कर्व करते हैं, और क्योंकि मुझे ये आगे चाहिए तो इसको भी कर्व करते हैं। ठीक है, जी एक्सिस भी कर्व होगा। सही, तो यहाँ तक आते आते एटलीस्ट रोटेशन अच्छी खासी हो जाए। सही है, इसी तरह ये भी, लेट्स सी, सी, बट एक और चीज़ मुझे लगता है देखनी पड़ेगी, वो ये कि ये अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा पॉप अप होता हुआ पता चल रहा है। सो रोटेशन तो फिर सही है, बट ये कि जो एकदम ये जंप आ रहा है ना, ये नहीं आना चाहिए। सो मुझे लगता है ये वाई एक्सिस की वजह से। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, लेट्स सी कि अगर मैं इसको यहाँ पर ये लाऊं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं, तो ये कैसा लगेगा, थोड़ा सा और कम। सी, तो अभी ये थोड़ा सा स्मूथ हो गया, क्योंकि हमारे पास फ्रेम भी कम है, 25 फ्रेम है, सो ज़्यादा स्मूथनेस दे नहीं सकते। दैट इज़ द रीज़न वाई आई यूजली यूज 30 FPS to work on a project. See, so this looks more appealing or more. अच्छा, इसको मैं बंद कर देता हूँ।
Okay, so we really don't need to show this part. ये part बस actually start होने के लिए है, ठीक है. We can also do one thing कि भाई अगर मैं ये y लेकर आ ही रहा हूँ, मैं थोड़ा सा और नीचे चले आऊँ. See, ठीक है. So you can make adjustment. आप एक essence आपको लेना होता है reference से. You don't have to exactly replicate things up. We need to just take the essence of it and think about it. सही. So again Alt B. Again अच्छा इससे पहले क्योंकि short 1 का मैंने export कर दिया था. Now I will just create increment shape and Alt B, Alter B, or okay. So now when I just open it in the preview one, show folder one, मैं यहीं से इसको rename कर देता हूँ short 2 V002. इसको मैं copy कर लूँगा and I will just copy and paste it where I have kept my free visual motion. कहाँ रखा था मैं पता है, edit में रखा होगा नहीं, कहाँ रखा था भाई free visual में. खैर मैं यहीं पे वो paste कर देता हूँ. See, so now I have multiple copies of all the shots. That's how that's how I will just populate this whole timeline. हर shot को इसी तरह बनाएंगे और यहाँ पर add कर देंगे. And once we have created all the frames, we will start working on the renders and everything. Yeah. So let's see you guys in the next video. Take care.